So first of all, welcome to Crucible, and we are discussing the characters first. We have John Proctor. So John Proctor happens to be among those people who are considered individuals and who are facing or fighting the society. So among these characters, John Proctor, to some extent, Reverend John Hale, Elizabeth, Rebecca Nurse, Francis Nurse, Giles Corey. So they are the people who are fighting a society, and rest of the people are representative of society in one way or another. So when we look at the characterization, so this play is also by Arthur Miller, but this is written about two different themes. We'll be discussing them later on after characterization. So John Proctor is a person who is a sinner, who had illicit relations with Abigail Williams, but he was done with it, and now he was living a loyal life with his wife, Elizabeth Proctor, but she is still like skeptic whether he is loyal or not. At the same time, Abigail Williams, she is niece of Reverend Paris. His parents, her parents, they were killed by Red Indians. So she was living with Reverend Paris and working at the home of John Proctor and Elizabeth Proctor. वहाँ पे इनका relation बन गया, जिसकी हमने बात की. Reverend John Hale is from church, और वो एक sane priest है, जो कि उन ongoing activities पे उस तरह believe नहीं करा जिस तरह society believe करवाना चाह रही थी. Reverend Paris was a materialistic person who was before a salesperson, a merchant in Barbados. This is from The Crucible by Arthur Miller. So he was first a merchant, and now then he converted to religion and became a priest here in the local parish, and the church is owned by him. He's all the time asking about wealth, money, candles, golden candlesticks. So he is not a fair minister. Rebecca Nurse and Francis Nurse, they are husband and wife. And Rebecca Nurse was both of them, they have lots of land and they have lots of respect among people. Because Rebecca, she was a nurse to many women on their childbirth. Judge Danforth, along with several people whom I'm not mentioning here, they were minor characters. They are from those people who were blinded by fake things that were going on, and they condemned many to die. Giles Corey is a person having huge land with him. Thomas Putnam too has a big land, and he has land lust. He wants to procure, snatch the land of people, and he gets people killed for the sake of land. So, and he is a person who is revengeful, the most revengeful. Now, coming back to the story. So this is time of Puritanism in New England. आपको पता होगा कि जब यहाँ पे यानी 13 कॉलोनीज अमेरिका की जो थी वो इंग्लैंड के कब्जे में थी, और फिर जब अमेरिका आज़ाद हुआ आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद कुछ इंग्लिश पीपल यहीं पे सेटल हो गए, कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे उनके लिए अच्छी प्रॉस्पेरिटी है. मीनवाइल प्यूरिटनिज्म, जिनको हमने देखा पढ़ा कि ये बड़ा एक फनेटिक किस्म का सेक्ट था, तो इन्होंने यहाँ आके अपना चर्च आबाद किया. वही फनेटिसिज्म जिसके टाइम में यहाँ वो उस जमाने में अलाउ नहीं करते थे थिएटर्स, नॉवल रीडिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, तो वो सब इन्होंने यहाँ भी जारी रखा. और यहाँ पे अब जो भी नॉवेल्स पढ़ता या थिएटर करता या डांस सिंगिंग करता, वो समझा जाता कि ये डेविल के अंडर है. अब यहाँ पे बेसिकली इसका जो पास्ट है वो इनिशियल 10 पेजेस जो हैं टेक्स्ट के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं. उसमें इसकी हिस्ट्री बताई गई, और हिस्ट्री ये है कि जो प्यूरिटन्स से वो जब वो आबाद हुए, तो वहाँ पे जितने भी उस जमाने में लोग थे जो कि रेड इंडियंस कहलाते थे, नेटिव्स,
उन लोगों को इन्होंने भगाया, उनके लैंड्स काबू किए, कुछ को इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो नहीं हुए उन्हें मार दिया, जो बच गए वो भाग गए जंगल की तरफ। तो जंगल को समझा जाता है कि ये डेवल, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, पैगन्स थे, तो ये समझते थे कि वो डेवल के इन्फ्लुएंस में है और जंगल भी डेवल का अबोर्ड है, तो जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था, तो उससे उधर जाने से लोग डरते थे। मीनवाइल उसने जो प्ले लिखा ये मैकार्थीइज्म, यानी जज मैकार्थी था जिसने ट्रायल्स शुरू किए कम्युनिज्म के खिलाफ, और वो कम्युनिज्म और पास्ट में 1692 का सैलम का विच क्राफ्ट का ट्रायल, ये दोनों चीजें कंबाइंड हैं, यानी एक डुअल लेवल पे ये एलेगरी है। द क्रूसिबल, क्रूसिबल बेसिकली होता है कि एक ऐसा मेटल, एक सब्सटेंस जिसके अंदर आप बहुत सारी धातुओं को जलाते हैं, डालते हैं, उनको टेस्ट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर, कितना एक प्रेशर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सोसाइटी में जो लोग थे उनको प्रेशराइज किया गया, और कुछ टूट गए, कुछ जो ना टूट सके उन्हें मार दिया गया। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है न्यू इंग्लैंड में, सैलम के एरिया में, जो बड़ा मशहूर है। सैलम की विचेस बड़ी मशहूर रही पास्ट में, इन पे मूवीज बनी, नॉवेल्स लिखे गए। सो देयर इज ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो कि डांस कर रही होती हैं फॉरेस्ट में। उनके साथ ये मुख्तलिफ लोगों की बेटियां या मुख्तलिफ लोगों के घर में काम करने वाली बच्चियां हैं, जो कि फॉरेस्ट में आकर डांस कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि डांसिंग वैसे मना है। उनके अंदर बचपना है, तो वो बचपने की सेक में फॉरेस्ट में जाती हैं जहां पे उन्हें पता है कि कोई भी नहीं आएगा। वहां पे उनके साथ एक ब्लैक स्लेव भी है, जो कि पेरिस जब बार्बाडोस में था, मर्चेंट था, तो वहां से परचेज करके लाया था। सो टिट्यूबा इज नीग्रो, जो उसके स्लेव है, और ये इनके पास काम करती है, तो वो भी इन बच्चियों के साथ है। तो रात का टाइम है, वो डांस करते हुए अचानक रेवरेंड पेरिस वहां से उनको ढूंढता हुआ आता है, और उनमें एक लड़की जो कि बेटी, जो कि पेरिस की बेटी होती है, वो कोमा टाइप स्टेट में चली जाती है, घबरा के, खौफ से। और मीनवाइल जब प्ले ओपन होता है तो पेरिस दुआ कर रहा होता है कि बेटी उसकी ठीक हो जाए, जो कि बेड पे पड़ी है, खौफ से उसे बुखार हो गया। मीनवाइल थॉमस पुटनम, जिसकी हमने बात की, जो लैंड लस्ट है जिसमें, उसकी भी बेटी इसी तरह बीमार पड़ी हुई है। अब बेसिकली क्या है, इनको पता है कि हमने डांसिंग की, फॉरेस्ट में गए तो डांसिंग की तो हमें सजा मिलेगी मिलेगी। तो वो अब जो क्राउड है बेसिकली वो उन इस बात पे आ जाता है कि ये शायद विच क्राफ्ट हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान डांसिंग नहीं करता। तो रेवरेंड पेरिस को अपनी सीट की पड़ जाती है कि मेरी सीट है, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, अगर किसी को पता लगा कि मिनिस्टर की बेटी विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी, जो कि ये सुपरस्टिशियस लोग थे, मानते थे विच क्राफ्ट को, तो मेरे लिए बड़ी एक बदनामी है। और वैसे भी चर्च के खिलाफ हैं लोग, मेरे खिलाफ हैं लोग, वो चाहते हैं कि वो मुझे हटा दें, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे यहाँ से निकाल देंगे। इस बेस पे वो डरा होता है। अब वहां पे हेल को बुलाते हैं। मीनवाइल जितने भी लोग आते हैं वो अपनी सुपरस्टिशियसनेस का इजहार करते हैं कि यहाँ पे विच क्राफ्ट हुआ होगा, स्पेशली पटनम की वाइफ, जिसके पहले कुछ बेबीज जाया हुए, तो उसको ये लगता है कि ये विच क्राफ्ट की बदौलत था। तो पेरिस कहता है मैंने हेल को बुलाया है, सो रेवरेंड हेल आके तस्दीक करेगा कि विच क्राफ्ट है या नहीं है। मीनवाइल एबिगेल सारों को धमका देती है कि जो भी हुआ कोई भी ये ना कहे कि विच क्राफ्ट था, हमने सिर्फ डांस किया था और डांस के अलावा हमने कुछ नहीं किया। हालांकि एबिगेल वहां पे अपनी तरफ से, दैट इज नॉट अ मैजिक, लेकिन अपनी तरफ से किसी जानवर का खून पीती है, परिंदे का खून पीती है। वो अपनी तरफ से जादू कर रही होती है एलिजाबेथ प्रॉक्टर पे, ताकि वो मर जाए और ये प्रॉक्टर से शादी कर ले, लेकिन वो दैट इज नॉट इन फैक्ट अ मैजिक। पेरिस जो है वो क्राउड को काम कराने के लिए जाता है नीचे, जहां पे चर्च के अंदर, और एबिगेल जो है ऊपर होती है। तो जॉन प्रॉक्टर जो कि लोकल फार्मर है वहां पे, वो एंटर होता है और वो एबिगेल से बात करता है। मीनवाइल वो उसे दोबारा सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता। सो एबिगेल स्टिल डिजायर रखती है प्रॉक्टर से शादी करने की, लेकिन प्रॉक्टर अब एक सही रास्ते पे आ गया। मीनवाइल अब ये जो, जब ये सारे लोग आते हैं तो वो कोई आके पूछते हैं ये कितना ऊंचा उड़ी,
क्योंकि ये विच क्राफ्ट में तो ये उड़ती होगी, इसने कैसी चीखें मारी, इसने क्या किया। तो वो बच्ची छोटी बातें सुन रही है, उसे पता है कि, और बाकी बच्चियों को भी पता है कि हमें कोड़े तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो बेहतर है कि भाई इससे कि हम मारे जाएं, कोड़े खाएं, तो हम क्यों ना विच क्राफ्ट को एक नया एक मोड़ दे दें। तो बेटी जो है वो चीखना शुरू कर देती है और वो अपनी खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है कि मैंने माँ के पास जाना है, मैं उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसने ये सारी बातें बड़ों से सुनी कि विच क्राफ्ट में ऐसा होता है। तो सारे कंफर्म हो जाता है उन्हें कि ये विच क्राफ्ट का कोई सिलसिला चल रहा है। मीनवाइल जाइल्स कोरे, पेरिस, प्रॉक्टर, थॉमस पटनम, जितने भी लोग हैं वहां के, वो उधर इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे उनके आपस में लैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। हेल आता है बेवरली से। सो रेवरेंड हेल इज अ पर्सन जिसके बारे में मशहूर है कि ये विच क्राफ्ट का एक्सपर्ट है। हालांकि उसने कोई विच नहीं पकड़ी, एक खातून के ऊपर शक था, लेकिन बाद में वो विच नहीं निकली, लेकिन ये मशहूर हो गया जुबान ज़द-ए-आम कि हेल विच क्राफ्ट का एक्सपर्ट है। हेल जो है वो एबिगेल से क्वेश्चन करता है, और जब पता चलता है टिट्यूबा का, तो टिट्यूबा को बुलाया जाता है। टिट्यूबा सबसे वल्नरेबल कैरेक्टर है, जो कि गुलाम भी है, नीग्रो भी है, उसकी लैंग्वेज भी किसी को समझ नहीं आती, बारबाडोस लैंग्वेज है, तो वो समझते हैं कि ये मंत्र पढ़ रही है। सो वो उसको डराते धमकाते हैं, तो वो मान जाती है सिर्फ इसलिए कि मुझे कत्ल ना किया जाए, कि मेरा डेवल से कॉम्पैक्ट है। हेल उससे कहता है कि अगर तुम बताओगी कि डेवल कौन था तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। अब बच्चियां ये भी सुन रही होती हैं कि अगर हम नाम ले लेंगे किसी का तो हमें बख्श दिया जाएगा, हमें नहीं मारा जाएगा, बल्कि उस बंदे को पकड़ लेंगे जिसका हम नाम लेंगे, और हम विच क्राफ्ट से सीमिंगली आजाद हो जाएंगे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो बाय द एंड ऑफ दैट, टिट्यूबा, एबिगेल और सारी बच्चियां किसी ना किसी का नाम लेती हैं। बेटी भी उठ जाती है, वो भी किसी का नाम लेती है, और इनको लगता है कि बेटी अब विच के असर से आजाद हो गई, क्योंकि इसने डेवल के खिलाफ गवाही दे दी। तो पूरे टाउन में एक शोर शराबा हो जाता है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि यहां तक अभी तक वो ये बच्चियां जितनों के नाम लेती हैं वो इंतहाई गरीब लोग हैं, या फकीर हैं, या कोई पागल खातून है शहर की, जिसके बारे में इन्हें पता कि ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये उनका नाम लेती हैं, और लोगों को लगता है कि ये डेवल के चुंगल से आजाद हो गए। एक हफ्ता गुजरता है, मीनवाइल ये सारा सिलसिला चलता जा रहा है सैलम के अंदर। प्रॉक्टर जो कि कुछ माइल्स दूर रहता है मेन सैलम से, तो उसके घर में अचानक ये, यानी वो उसका और उसकी वाइफ का डिसलॉयल्टी वाला एटीट्यूड नजर आ रहा होता है हमें। और बड़ी प्यारी लाइन कहता है कि योर जस्टिस विल फ्रीज द बेयर, कि तुम इतनी हो कि तुम्हारी यानी तुम इतना मेरी तरफ कोल्ड एटीट्यूड है तुम्हारा कि तुम पानी या बेयर को भी ठंडा कर दोगी, जमा दोगी, इस तरह का रवैया तुम मेरी तरफ रख रही हो। मीनवाइल उनकी मेड सर्वेंट एंटर होती है। अब उनकी जो मेड सर्वेंट है बेसिकली वो भी उन बच्चियों में थी जो डांस कर रही थी, और मैरी वेरन उसका नाम है। वो आके बताती है कि हम कोर्ट का बड़ा काम कर रहे हैं, कोर्ट को हम मुजरिम पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, विचेस पकड़ के दे रहे हैं। तो मैरी जो है वो जाने से पहले, अपने बेड पे जाने से पहले इनसे अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट करती है, जो पहले इनके सामने बोलती नहीं थी, अब बड़ी शेर हुई हुई है। तो वो कहती है कि मैं किसी पे वहां पे इल्जाम नहीं लगा रही थी, बल्कि मैं तो गुडी प्रॉक्टर, गुडी कहते हैं मिसेस को, तो ये वर्ड अक्सर आ सकता है। गुडी मीन्स मिसेस, गुडी प्रॉक्टर, गुडी पटनम, दैट मीन्स मिसेस प्रॉक्टर, मिसेस पटनम, कि मैं गुडी प्रॉक्टर के लिए ये डॉल बना रही थी। तो वो अपनी जेब से एक डॉल निकाल के देती है, तो वो एक पपेट होता है, तो एलिजाबेथ उससे रख लेती है। अभी वो मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहां पे पता लगता है कि जाइल्स कोरे और फ्रांसिस नर्स आते हैं कि हमारी वाइफ्स को पकड़ लिया गया, क्योंकि लड़कियों ने इनके नाम लिए और इनको पकड़ लिया गया। अब क्यों नाम लिए? जाइल्स कोरे की जो वाइफ थी, जाइल्स कोरे ने वैसी बातों बातों में कह दिया था कि मेरी वाइफ मार्था कोरे कुछ नॉवेल्स पढ़ती है। हालांकि ये इलिटरेट था, इसे नहीं पढ़ना आता था, वो एमी कोई स्टोरी पढ़ी होती थी आम सी, तो उन्होंने समझा कि ये कोई जादुई चीजें हैं। वो कहता है कि मुझे पढ़ती है तो मैं, यानी एक बंदे को जिस तरह प्रोमिनेंट होने का शौक होता है, तो वो उस शौक में कह देता है कि वो जब पढ़ती है तो मैं इबादत नहीं कर सकता, जब वो पढ़ना खत्म करती है तो मैं इबादत कर लेता हूँ। सो इन दिस वे उसको भी पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस नर्स की वाइफ को क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि मिसेस पटनम को शक होता है कि इसने मेरे बच्चों को मारा, क्योंकि ये दाई थी उनकी। प्लस
जो मिस्टर पुटनम है, थॉमस पुटनम, वो सबसे लैंड हासिल करना चाहता है। तो फ्रांसिस नर्स के पास तो बहुत लैंड है, तो वो अपनी बेटी को कह के उसका नाम लगवा देता है, तो वो भी अरेस्ट हो जाते हैं। मीनवाइल जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, वो आते हैं और एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लेते हैं, और वो बताते हैं कि इसको अरेस्ट करने की रीजन क्या है कि इसके पास एक पपेट है, और जब वो देखते हैं तो पपेट वही होता है जिसके अंदर नीडल्स लगी होती हैं। तो एबिगेल ने उसमें नीडल्स लगा के उस पर इल्जाम लगा दिया होता है कि ये जादू करती है, और ये जादू की वजह से यानी नीडल्स, क्योंकि वो फिर आगे टेस्टिफाई करके दिखाती है कि मेरे अंदर से ये नीडल्स निकली हैं, तो ये नीडल्स वही हैं। सो पकड़ी जाती है बहरहाल। अब प्रॉक्टर क्या करता है, ये अपने साथ सारे लोगों को मिलाता है और उनके साथ उनके साइन करवाता है। गांव के कोई 70-80 लोग साइन कर देते हैं कि वाकई ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया, और मैरी वेरन को एज अ गवाह वो ले जाते हैं कि ये एलिजाबेथ ने नहीं बनाया पपेट, बल्कि मैरी वेरन ने बनाया। डैनफोर्थ जो है वो उस टाइम पे लाइक उन सारे लोगों को बुला लेता है जितनों के नाम लिखे गए। ये रोते हैं कि भाई तुम उन्हें क्यों बीच में डाल रहे हो। वो कहता है जब इन्होंने लिखा है तो ये बताएंगे। अब वहां पे चल ये रहा है कि जो वहां पे गवाही देने आएगा या तो वो मारा जाएगा या वो किसी का नाम लेगा कि ये विच क्राफ्ट में मुलव्वस है। सो इस बेस पे हर बंदे को वहां पे फांसी दी जाती है, मार दिया जाता है। प्रॉक्टर जो है इन द एंड जब उसे पता चलता है, अब प्रॉक्टर जो है बेसिकली एक गुनाह छुपाता जा रहा है। वो गुनाह ये है कि उसका जो एलिजाबेथ से चक्कर था, और वो इसे पब्लिक नहीं कर पाता, ना करना चाह रहा है, क्योंकि वो चर्च या वो लोग जो कि डांस की परमिशन नहीं देते, वो ऐसे इलिसिट रिलेशंस के ऊपर क्या सजा देंगे। प्लस प्रॉक्टर का एक नाम होता है शहर में, तो प्रॉक्टर इन द एंड जो है अपने करेक्टर की कुर्बानी दे देता है, अपने नाम की। वो कहता है जी कि एलिजाबेथ, ये जो एबिगेल है, इसके साथ मेरा ये रिलेशन था, और ये जितनी पाक है मुझे पता है, ये सब पे झूठे इल्जाम लगा रही है। तो जो वो कहता है कि तुम कौन इस बात की तस्दीक करेगा, कहता मेरी वाइफ करेगी। तो उसकी वाइफ को लेके आते हैं। अब एलिजाबेथ इस टाइम प्रेग्नेंट होती है और उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी डिले हो जाती है इस वजह से। डॉक्टर कहता है कि सबसे सच बोलने वाली ये है, ये तस्दीक करेगी। जब एलिजाबेथ आती है तो वो प्रॉक्टर की इज्जत के लिए झूठ बोल देती है कि इसका किसी के साथ अफेयर नहीं था। प्रॉक्टर इस पे झूठा पड़ जाता है। उसकी गवाही जो है एबिगेल के खिलाफ वो कमजोर पड़ जाती है, तो उसमें प्रॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है। जाइल्स कोरेक को मार देते हैं। उसके यानी उस पे ये होता है कि अगर जाइल्स कोरे मान लेगा कि मैंने विच क्राफ्ट किया, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी पीछे से पटनम स्नैच कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को आ सकती है। तो जाइल्स कोरे के ऊपर वेट रखा जाता है, उसके सीने पे क्रश करने के लिए, उगलवाने के लिए। तो उसका जवाब यही होता है, मोर वेट, के और वजन डालो। यानी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने इस तरह का कोई एक्टिविटी की, ना वो चाहता कि उसका लैंड थॉमस पटनम के पास जाए। मीनवाइल कोर्ट को ऐसा ऐसा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं, हम इस तरह तो हम सारा गांव मार देंगे, लेकिन फिर कल्प्रिट कौन होगा। तो मीनवाइल एबिगेल को पता लग जाता है कि अब ये लोग, ये अदालत को पता लग जाएगा कि ये ट्रायल सारे फेक थे, ये कुछ भी नहीं था विच क्राफ्ट, ये सिर्फ हमने इंतकाम लिया, वेंजेंस लिया। तो सारे ये जो इसकी जो करता धरता एबिगेल होती है, वो अपने अंकल यानी पेरिस के पैसे चुरा के वहां से भाग जाती है। हेल भी कोर्ट से दूर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि इन्होंने बेगुनाहों को मारा। डेनफोर्थ को भी आइडिया हो जाता है कि उसने गलत तरह से जस्टिस किया। जॉन प्रॉक्टर जो है वो इन द एंड यानी खुद कॉन्फेस कर लेता है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता। तो वो कहता है कि अगर मेरे लिए मेरा नाम इंपॉर्टेंट है, मेरी इज्जत तो चली गई, नाम मेरा मेरे साथ जिंदा रहने दो। सो हेल बहुत प्लीज करता है, लेकिन प्रॉक्टर को फांसी की तरफ ले जाया जाता है, और इन द एंड प्रॉक्टर को भी फांसी दे दी जाती है। तो थीम्स हैं जस्टिस, जो जस्टिस वहां पे जैसा हो रहा था, दिस ऑल मूव्स अराउंड द थीम ऑफ जस्टिस विच वाज टोटली इनजस्टिस। विचक्राफ्ट जो कि सैलम के बारे में एट्रीब्यूटेड था, लेकिन इनफैक्ट देयर वाज नो विचक्राफ्ट एट ऑल।
इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, वी सी कि सोसाइटी जोर पे है और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जो उनके साथ नहीं है वो उनके अगेंस्ट समझा जाता है, यानी माई वे और हाई वे। प्यूरिटनिज्म, ये उनकी तबाकारियां हैं कि जिस सफाकी से उन्होंने चर्च को इस्टेब्लिश किया। लस्ट, एबिगेल की सूरत में जो कि अभी तक थी, और प्रॉक्टर की जो खत्म हो चुकी थी। लैंड लस्ट, पटनम का, जिसकी बेस पे उसने अपनी बेटी के जरिए जाइल्स को रेबिकनर्स और उसके हस्बैंड को मरवा दिया। मटीरियलिज्म, जो हम देखते हैं वहां के पादरी यानी रेवरेंड पैरिस के हवाले से कि ही इज आफ्टर मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी। मैस हिस्टेरिया, यानी वो खौफ है अवाम में जो कि फैल जाता है कि अब मेरा नाम आया और अब मुझे फांसी दे दी जाएगी। पैरानोया इज अ डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ऑन सोसाइटी, के हर बंदा हर एक से डर रहा होता है। सिंबल्स जो है उसमें विच ट्रायल्स और मैकार्थीज्म, दीज आर द सिंबल्स। सो ये जो कुछ हुआ वो सिंबॉलिक है। विच क्राफ्ट ट्रायल जो कि सैलम में हुए 1692 में, और मैकार्थीज्म उसके जो ट्रायल्स थे कि इसी तरह जो यानी जो डेवल के साथ है या जो कम्युनिज्म के साथ है, तो कम्युनिस्ट पीपल के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। पॉपेट जो है दैट इज सिंबॉलिक फॉर डेवल, ये डेवल वर्शिपर्स। क्रूसिबल जो है दैट इज सिंबॉलिक इटसेल्फ, द मेटल या जो यूटेंसिल है वो सिंबॉलिक है उस टेस्ट का, जिस टेस्ट में से ये सारे लोग गुजरे। कुछ टूट गए लेकिन कुछ ने अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखा। This was The Crucible by Arthur Miller.